الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. A very warm welcome to this session of fear and grief. I'm glad to have you all. Inshallah, we'll commence the session. Assalamu alaikum, Dr. Safina. I just suggest wait Walaikum for assalam. 2 more minutes because we'll begin at around 10:05 because there are more people coming in. I see. Sure. Okay. We'll wait for further 2 minutes. So hope बिइज़्निल्लाह आप लोग सब खैर और आफियत से होंगे. Alhamdulillah. Thank you for asking, Abby. Alhamdulillah, doing well too. Jazakallah khair. Oh, yeah. Nasreen, somebody has messaged me asking for password. Can you just send the password as well, please? There is no password actually here, but I don't know. I mean, yeah, it is open. It is open. I will share the password anyways in the group here. Yeah, share it in the group. Yeah, share it in the group. Yeah, Someone just messaged me. that's the password, huh? I just typed 709243. उसमें भी डाल देना नसरीन, दूसरे ग्रुप में, तफसीर क्लास के ग्रुप में. 709243. We can begin, inshallah, now. Sure. Chalo, okay. Assalamu alaikum once again. So today we are going to do a session on fear and grief. Currently, this is a much needed topic as we all are facing loss one after the another in one form or another. किसी का loss छोटा होगा या किसी का loss बड़ा होगा, but overall everybody is facing some problem or the other, some loss or the other. Apart from this phrase, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, this is not an ayah, but it is a part of an ayah. It is a phrase of an ayah. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. The translation of which is, there shall be no fear on them, nor shall they grieve. So this has been repeated in the Quran 15 times. 15 बार ये कुरान में repeat हुआ है. And let me tell you, सूरह बकरा में सिर्फ और सिर्फ सूरह बकरा में ये 6 बार रिपीट हुआ है. सूरह बकरा
ayat number 38, ayat number 62, ayat number 112, ayat number 262, ayat number 274, and ayat number 277. So सूरह बकरा अलोन ये 6 बार रिपीट हुआ है. सूरह इमरान में ये आयत नंबर 170, and other surahs, surah 5 69 verse, surah 6 48 verse, surah 7 35 and 49 verse, surah 10 62 verse, surah 42 68 verse, and surah 46 13 verse. इसके अलावा भी और सूरे द 29 जोस या 29 जोस 28 जोस में ये काफी बार रिपीट हुई है. सो इन सूरों में जो मैंने आपको मेंशन किया है, यहाँ इन सारे सूरों में एक ही फ्रेज में है फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज आयात, दूसरे आयात में सिर्फ the phrase changed hai, but still it has been repeated. So you can say around 25 times it has been repeated. तो जब ये phrase इतनी बार बार repeat हो रहा है, तो obviously it must be very important. So today I'm going to do about grief. Tomorrow I'll be doing about fear, and tomorrow along with that fear I will be dealing with the importance of this phrase along with the ayah. हर आयत में इस phrase से पहले कोई ना कोई element या कोई ना कोई quality is mentioned which will which will strengthen our which will help us to conquer fear and elevate our grief. Okay. So वो हम कल discuss करेंगे कि what are the different qualities which Allah Subhanahu wa Ta'ala has mentioned जो हमें strengthen करता है to gain the to overcome the fear or to lessen the grief. That I will discuss tomorrow. But before that we will learn in detail about the fear and grief. So starting with the fear today, inshallah, Vednillah. Or what we are going to do is now first we will deal with the grief secular studies के हिसाब से. जो दुनिया की किताब है, this secular studies, उसके हिसाब से first we will do grief and then we will go into the Islamic perspective. Now, what is grief? And let me remind you, this is interaction basis. तो आप लोग को जब भी कोई भी बात शेयर करनी हो या ऐड करनी हो या फिर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप प्लीज डॉक्टर सफीना प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को. ये अनम्यूट कैसे हो गया खुद ही से? Okay, right. So we begin with grief. Now what is grief? आप लोग के हिसाब से what is grief? That is गम. grief उसको उर्दू में जब हम बोलेंगे तो it is गम के तौर पे. तो what is actually grief? आप में से कौन बताएगा? Everybody is invited to speak. Everybody is most welcome. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. A kind of tension that we keep on thinking about something again and again. Kind of danger. Okay, kind of danger. Tension going on, stress Tension. kind of thing. Okay, tension or stress. She feels that tension or stress is grief. Okay. Anybody else? We are worrying too much about something. Okay, worrying too much about something.
All Yeah. right. Anybody else? And in terms, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जब जब आप अपने को खो देते हैं कि आपके ओके, बच्चे हो या आपके वालिदैन या वालिद, जी जब जी आप जी बिल्कुल, मर जज़ाकल्लाह खैर। जी Anybody else? Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Baji, when we don't accept the situation we are in, Okay, when we don't accept the situation. जी बिल्कुल, right? So all these things अब आप देखेंगे, everything ये सारी चीजें शामिल होंगी when we go through all this। आप लोगों ने जो जो बोला है वो सारा कुछ इसी में शामिल होगा। Somebody has messaged me, please messages ना भेजें because alhamdulillah the list is quite long, I cannot see the messages। तो मैं पार्टिसिपेंट पे रखती हूँ मैं, ताकि मुझे पता चले कौन स्पीक करना चाह रहे हैं। तो आप में से किसी को भी कुछ भी बोलना है तो प्लीज आप हैंड्स रेज कर दें। जी रज़िया। Gum, yeah, grief is an emotion which a person feels when they lose something that is very dear to them, or when Right. something is not going your way. Absolutely true. Jazakallah khair. So somebody has messaged me about the ayah. So I did mention Surah Baqarah alone 6 times repeat hui hai, and the others I will leave the numbers later inshallah. I will leave it there in the group inshallah. You can take it from the group inshallah. Okay, so grief, what is a grief? It is a natural response to loss. कोई भी loss हो, किस किस्म का भी loss हो, it is a natural response to loss and emotional suffering. So you can say it is our fitra. आप जानते हैं फितरत के बारे में, फितरा के बारे में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर डाल रखा है। तो this grief is one type of that fitra. It is there within us. हमारे से कोई भी चीज छूट जाए, if we lose छोटी सी छोटी चीज भी हो, you know, something your favorite pen, आपकी कोई भी चीज आपकी favorite चीज हो, when that is lost you will grieve. So it is a natural response to loss. It's an emotional suffering. It is an emotional suffering. It is the internal feeling one experiences due to loss. See, this I'm going through the secular study on grief. तो अब यहाँ पर देखें, there is, according to the psychology and according to the medicine, body and mind, they have, man is made of body and mind. सिर्फ दो entities हैं इनके पास, body and mind. Whereas if we come to the Islamic perspective, we understand we consist of body, mind as well as soul. We are three entities there. तो यहाँ पर जब हम सिर्फ body and mind, आप mind में, I mean when they describe only ourselves as body and mind, तो बहुत सारे questions unanswered रह जाते हैं. So when we do Islamic perspective, you will understand कि कहाँ कहाँ चीजें gap थी, कहाँ पर unanswered थी. So here they say it is natural response to loss and emotional suffering. They say it's an emotional suffering. How it is an emotional suffering, I will explain in the Islamic perspective, inshallah. It is the internal feeling one experience. What is internal feeling? Again, we will do in the Islamic perspective. It is an internal feeling one experience due to loss. So basically, grief is what? It is due to loss. Pain caused is directly proportional to the love and affinity with the loss. यानी आपको आपकी जो भी चीज जाती है, जितनी आप उसे मोहब्बत करते हैं, उतना ज्यादा आपको तकलीफ होती है। कोई भी चीज जो आपसे छूट गई है और आपको उसे मोहब्बत नहीं थी, तो उसकी आपको तकलीफ नहीं होगी, ना ही आपको गम होगा। लेकिन जब जो भी चीज आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं उससे, वो चीज जब छूट जाए तो फिर आपका गम ज्यादा बढ़ेगा. This again we will do in Islamic perspective, inshallah. So coping with grief is a challenge, and loss can be of a person, जब किसी की death हो जाए, yeah, it can be in a form of relation, a breakup,
break a relation between a friends से breakup हो जाए, या husband and wife, या spouse का relation, I mean divorce, loss of job, loss of health, loss of your cherished dream. आप बहुत टाइम से एक ख्वाब पाल रखे थे और वो फिर कहते हैं ख्वाब चुकना चूर हो गया, तो अगर वो हो जाए, या आपकी सेहत चली जाए, या फिर आपका घर छूट जाए आपसे, स्पेशली हम लोग जैसे लेडीज अपना घर छोड़ के अपने ससुराल आते हैं, तो घर हमसे छूटता है, तो इनिशियली हमारा ग्रीफ होता है। और वैसे भी आप समझे कोई आपका अल्लाह ना करे किसी का घर बिक जाए, या फिर किसी से कोई अपना चहीता घर छूट जाए, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो जाए, सो ऑल दिस थिंग लॉस, बड़े से बड़ा लॉस हो सकता है, छोटे से छोटा लॉस भी हो सकता है। आपकी फेवरेट पेन चली जाए, या आपका फेवरेट सूट जल जाए, something like that, anything. So keep a loss in your mind. We are doing a grief, so my advice is keep some loss in your mind. कोई भी loss हो, keep that in your mind to understand this lecture more better. तो इसके नताइज क्या होंगे? जब हमसे कोई चीज छूट जाता है तो उसके नताइज क्या होंगे? यहाँ पर they give only 2 physical symptoms and emotional symptoms because they believe only in the body and the mind. So physical symptoms, they are the fatigue, nausea, loss of appetite, decreased immunity, aches and pains, insomnia, that is loss of sleep. तो इस किस्म के थकान, बॉडी में थकान होना, खाना नहीं खाए जाना, या फिर आपकी जिस्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स होना, नींद नहीं आना, बॉडी की इम्यूनिटी कम होना, these are some of the factors. इमोशनल सिम्टम्स में आप देखेंगे शॉक होगा, इमीडिएटली a person will get a shock, disbelief, वो यकीन नहीं करेंगे, sadness, guilt, anger, fear. So these are the emotional symptoms which they will feel. Prolonged symptoms में आएंगे anxiety disorders, stress, major depressions, and at times post-traumatic stress disorders. अगर ग्रीफ को बराबर तरीके से डील नहीं किया गया, अभी इस वक्त बराबर तरीके से उसको डील नहीं किया, आपके अंदर से वो सारे के सारा जो गम था वो बाहर अगर नहीं निकला, तो लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक स्टार्ट होते हैं, स्ट्रेस आएगा, मेजर डिप्रेशन हो जाएगा, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलकर होता है, स्पेशली किसी के पास कोई डेथ हो जाए या यूजुअली एसोसिएटेड विद डेथ, तो उसके बाद a person, a sense of well-being is lost, safety is threatened, and that person relives the loss again and again. तो post traumatic stress disorder is जहाँ पर एक इंसान की खुशगवार जिंदगी में असर पड़ेगा, एक इंसान की खुशगवार जिंदगी में असर पड़ता है, और वो इस चीज को, जो गम उसको लगा था किसी की डेथ का, तो वो बार बार उसके अंदर रिन्यू होते जाएगा, बार बार वो रिन्यू होते जाएगा, और इट्स जस्ट लाइक वो बार बार वो जख्म ताजा होता जाएगा. So that is post traumatic stress disorder. And we have mourning and bereavement. It is a state, outward expression of the loss. So we have a mourning period अगर बहुत ज्यादा loss हो जाए. Mourning is not associated with death. We usually take mourning with death. But देखिए what is mourning? आप गमज़दा होते हैं और आप अंदर से खींचे होते हैं, तो it is associated with any type of loss, not just death, but any type of loss. The mourning is the outward expression of the loss. And in the psychology, Elizabeth Kubler-Ross, she has defined the stages of a grief. The stages of grief. The first stage, initially she gave 5 stages, लेकिन modified, ये model थोड़ा modify हो गया है, and they have given at 7 stages. So the first stage is the shock, the second stage is the denial, the third is the anger, fourth bargaining, fifth depression,
6th, reconstruction. 7th, acceptance. Right? So these are the stages which we'll go through briefly. First comes the shock. जैसे किसी के as I said, आप लोग कोई ना कोई अपना डिफाइन कीजिए, रिकलेक्ट कीजिए कोई ना कोई लॉस जो आप से हो चुका है. In other words, I think we'll have a volunteer here who would like to volunteer. Somebody who can come and tell me about a loss, कि आप whatever loss that was, so how you went through it, what was your reaction to that? Can anybody help me? Yes, Giovanna, go ahead. I lost my dad, Allah yarhamah. Okay. Just before 4 months, I lost my mother, Allah yarhamha. Yeah. So that was really too much for me. Sorry to hear that. Allah jannat naseeb kare donon ko. Ameen, subh ameen. So how was it when that news came to you? Actually, when my mother was sick, so I was in one way prepared. But my father was just suddenly, it was Friday, and I came to know, and it took little time for me to recollect myself. But then at the end of the day, I was like, everybody has to go. So right. I just prayed for him. And that's how, yeah, because like we say, today we hear my father, so, it was shock. Why? Because I wasn't prepared. I wasn't expecting this news. And suddenly it came to me that I was shocked. But then I understood that we have to go one day to Allah. And she was prepared. Yes, she was prepared. But mostly people are not prepared to accept the death or accept any type of loss, right? Jazakallah khair, Jumana. Anybody else? Anybody else who would like to share who was not prepared? Okay, let's know if it is not about the death, can we have something else? Yes, Husna? Okay, you just mentioned it not about death. I was about to say about my mother's time. Okay, sure, go ahead. We were not prepared actually. She, Alhamdulillah, I mean, this was like maybe 2 years now, 3 years that she passed away. I don't know. But it was just, she was doing well, a little bit here and there. I mean, Alhamdulillah, she was 75 when she passed away. But she was quite active until the day. And I think in a few days we were going to be meeting her as we were going on holiday. But this news came to us just 10 or 15 days before our going on leave. So just I was coming back from work and I was receiving calls from my home people and I was just thinking, "Mummy ko hospital lekar." I said, "What happened suddenly?" And it was just a matter of like maybe 45 minutes from the time they informed me that they're taking her, and then the next I heard that she's gone. So this was a thing that was really, shocking, and we were not prepared for it because she was doing so well. So can you describe your emotions and your reaction it was after that? Yeah, reaction was immediately, my niece was the one who informed me, and I was like, how can it be? What are you telling me? Like that kind of a thing. A little bit of, kind of anger. Right. I mean, then I had informed my brother. He came in a little while home, and he also was like shocked. And how can it be? You just told me that they're taking us to the hospital, and how come she's gone? I said, yeah. I mean, we just kind of we were out in tears, and we were just broken down completely. It was just thing very hard to accept, but brought ourselves, pulled ourselves together, kind of thing. Right. And we went. Hello. This is yes, go on. Yes, I can hear you. Yeah, I want to speak about a loss. It is not this sort of. It was a financial loss. Okay. We lost a big amount, but I had sort of patience from Allah, because when we had invested, our intention was different, and we had made istikhara before investing. We did not want the amount to be in the bank, and we want to save ourselves from riba.
So we had invested that amount, and unluckily we had a loss in that investment. But I felt like because we had done istikhara, so there was a content in my heart, even though we have lost something. It was from Allah, and Allah had something good in it, so we lost it. So there was a sabr from His side. So we don't repent for that, and I'm sure that Allah is gonna bless us more than what we have lost. So this is a different kind of loss I wanted to share with you all. Jazakallah khair. Jazakallah khair. This is what we'll be doing in Islamic perspective. She has given an example of Islamic perspective. जब हम दीन के साथ जुड़े होते हैं तो लॉस को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं. She has given an example of that. All right. अरीबा, आपको भी कुछ कहना है? Okay, Reen. जी सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हमारा लॉस आई मीन बहुत बड़ा लॉस था का इंसिडेंट हुआ 2019 में हुआ ये. वी हैड इन्वेस्टेड इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस. तो फिर ऊपर नीचे हुआ था, कुछ इंसिडेंट हुआ था कि हमारा रेस्टोरेंट का छत गिरा दिया एंड ऑल ऑफ दैट बिल्डिंग वाले. तो वी लॉस दैट. स्टिल वी वर प्रिपेयर्ड. वो बहुत बड़ा लॉस था बट वी वर प्रिपेयर्ड. फिर it was time to get back to the again. Right. हुआ. फिर उसके just 1-2 महीने बाद I mean I was handling the entire thing. I mean I was handling the show. फिर मेरा ये था कि नहीं अभी फिर से छत बनानी है and then खलास we cannot sit down and ऐसे अपसेट होने से फायदा नहीं है ये वो. फिर मैंने ऑर्डर दे दिया छत बनाने का. एवरीथिंग वाज डन. फिर माय हस्बैंड सुबह कॉल करके he was saying कि आज से we are closing it down. So I was sleeping that time. He just called me and he said we are closing it down. So for me it took so. I'm sorry to cut short, Reen, but we are only interested in all the stages. Okay. मैं आप लोगों से ये सारे चीजें इसलिए ले रही थी because we are going through the stages. And Jazakallah khair everybody for your participation. Let me continue further because we have to complete our discussion within the time. So as we said, there are 5 stages of grief initially given by Elizabeth Kubler-Ross. This model was revised and there are 7 stages now. So the first stage was shock, जैसे आपने सबने सुना है कि the minute you get the news, you're shocked. Shock is initial paralysis of hearing the bad news. यानी एक किस्म के आप freeze हो जाते हो. When you get the news, you're almost like you have been frozen. Initial paralysis at hearing the bad news. Next stage comes the denial. The denial mode. You immediately go into the denial mode. You don't want to believe it can happen. Let me remind you about Umar radiallahu anhu when he received the news of Rasulullah leaving this world. जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो Hazrat Umar refused to believe. He was in such a shock में थे. Later he refused to believe. फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आकर फिर आपने कुरान की आयत याद दिलाई, पढ़कर सुनाया लोगों को कि जो लोग what was that आयत के हजरत अबू के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक इंसान है और वो इस दुनिया से चले जाएंगे, और जो अल्लाह के लिए दीन में आए थे वो दीन को फॉलो करेंगे, और जो रसूल के लिए दीन में एंटर हुए थे वो दीन से निकल जाएंगे. तो दैट आयत ब्रॉट बैक हजरत उमर रदियल्लाहु फ्रॉम द डिनायल मोड टू एन एक्सेप्टेंस मोड. तब आप देखें हजरत उमर जैसी हस्ती आप भी डिनायल मोड में गए थे. तो people go into denial mode trying to avoid the inevitable. This can, we say कि this cannot happen to me. ये ऐसे नहीं हो सकता. It cannot happen to me. It cannot happen to me. ऐसे हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता. This is the denial mode. After the denial mode, जब आप denial mode के बाद क्या आता है? Next comes the anger, frustration inside us. कि why me? मेरे साथ ही क्यों हुआ ये? Things like that. So the next is the anger mode.
उसके बाद आता है बार्गेनिंग, यू नो ट्राइंग टू सी कि हम शायद सिचुएशंस को चेंज करें तो शायद ये इरिवर्सिबल हो जाए, जो लॉस है वो इरिवर्सिबल हो जाए, यू ट्राई टू बार्गेन इट। एंड नेक्स्ट अगर आप वो भी कर देख लें कि इरिवर्सिबल नहीं हो रहा है, जो चीज आपको से खो गई है वो वापस नहीं आने वाली है, देन यू एंटर इनटू अ डिप्रेशन मोड, फाइनल रियलाइजेशन ऑफ द इनएविटेबल। तो तब the person come into a depression mode, I am sad to do anything, अब वो फिर कुछ नहीं करता, वो सब चीजें छोड़ देता है। Next comes the reconstruction. After some time it comes the reconstruction, seeking realistic solution. Let's work it out. अब ये हो चुका है, what next? Next is that acceptance. उसके बाद में आता है acceptance mode, finally finding a way forward, आगे बढ़ने का। So at this time, acceptance, I am at peace with whatever happened. So the person says, I am at peace with whatever happened. So these are the 7 stages of the grief. तो अब इंसान जरूरी नहीं है कि एक एक स्टेज में जाए, हो सकता है कि एंगर ना हो वो बार्गेनिंग में चले जाए, या डिप्रेशन ना हो वो रिकंस्ट्रक्शन में चले जाए। इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी पर्सन हैज टू फॉलो द 7 स्टेजेस, बट कोई ना कोई स्टेज पे आता है इंसान और वो फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। दिस इज हाउ वी प्रोसीड। इट इज लाइक यू नो अ डाउन वेव, नीचे जाकर ऊपर आना, यू नो फॉल एंड देन कम अप। वेव, डाउनवर्ड्स वेव जो होती है, you go down and then you come up. So it is like that. You first sink and then you come up. तो जब हम सिंक होते हैं और जब हम यहाँ से फिर हमें निकलना होता है, तो हम obviously we need something, किसी you know किसी का हाथ चाहिए होता है या कोई भी रोप चाहिए होता है to come out of it. You have sunk एक well, just imagine एक well के अंदर you have sunk in a well, so now you need to come up. तो आप वापस निकलने के लिए आपको अंदर बाहर से मदद चाहिए होगी या फिर आप अपने अंदर से कोई मदद चाहिए होगी बाहर निकलने के लिए। तो ये मदद जो आपको चाहिए होती है इससे निकलने के लिए, ग्रीफ से निकलने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस किस्म की मदद होती है वो काउंट होता है। जब दुनिया की सोर्स से मदद होती है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर नॉट फ्रूटफुल और दे आर लॉन्ग लास्ट, आई मीन टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन जब हम यही चीज को इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे जाते हैं, व्हाट वी सी इज शॉक मोड से हम डायरेक्टली एक्सेप्टेंस मोड पे चले जाते हैं। अभी जैसे आई थिंक वन ऑफ द मेंबर हियर, one of the participants, I don't remember, I think Rafat, is it? उन्होंने कहा था showed कि directly she went into the acceptance mode. That is most important कि आपको bad news मिले तो आप उसको acceptance mode में कब जाते हैं। जितना जल्दी आप acceptance mode में जाएंगे तो ये stage आपका कम हो जाएगा। Alright, inshallah we'll do it much detail now. Coming to the Islamic perspective. So as we said, first we should understand that we consist of a man, a human consists of body, brain and soul. तीन चीजें हैं, body, brain and soul. और जो हमने अभी starting में जो definition पढ़ी थी, it is a natural response to loss and emotional suffering. It is the internal feeling. So ये जो internal feeling और ये जो emotional suffering की बात होती है ना, this is experienced by the soul. हमारा soul, the internal sub feeling, तो हमारे अंदर जो soul होता है, that will experience this feeling, and emotions are experienced by our soul. और emotions जो अंदर जो emotions होते हैं, उसके expressions are seen on the body. For example, grief. Grief ये हमारे soul पे touch होगी, हमारे रूह को touch करेगी और हमारे अंदर तकलीफ पहुंचाएगी, रूह को तकलीफ पहुंचेगी और इसका रिफ्लेक्शन आपके बॉडी पे नजर आएगा, आपके चेहरे पे नजर आएगा। उदास सा चेहरा हो जाता है। तो जब उदास चेहरा हो जाता है, हमें पता हो जाता है कि हमारी रूह तकलीफ में है। और जब नफ्स मुतमईन, जब नफ्स रूह मुतमईन होती है, पीसफुल होती है, तो आपके चेहरे पे
a smile, a happy face. प्लीज म्यूट कर लीजिए परवीन अहमद, जज़ाकल्लाह खैर। तो आपके चेहरे पे नजर आता है, जैसे ही आपका अंदर इत्मीनान हो, आपकी नफ्स, आपकी रूह इत्मीनान हो, तो आपके चेहरे पे नजर आती है वो खुशी। सो what I believe is the soul, emotions are felt by the soul and the reflection is on the body, right? तो यहाँ पर soul is involved। तो सोल का जब हम इलाज करें ना, तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी बॉडी की भी इलाज हो जाती है, राइट? सो फर्स्ट वी आर बॉडी, ब्रेन एंड सोल। नेक्स्ट थिंग, loss is associated, I said loss is associated with the love and affinity towards it। यानी जो भी चीज आपको ज्यादा ताल्लुक रखती है, ज्यादा मोहब्बत रखते हैं उससे और ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, तो वो आपको ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगी। अगर आप उसे मोहब्बत ना करें, उसे ताल्लुक कम रखें, तो वो आपको नुकसान कम देगी। तो इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है लव का? इस्लाम में लव का कॉन्सेप्ट ये है कि हम सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत करें। लव इज ऑलवेज फॉर अल्लाह सुब्हानहू ताला, और उसके बाद हर एक से मोहब्बत करें अल्लाह की खातिर। लविंग एवरीथिंग एल्स या एवरीबडी एल्स only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मोहब्बत अल्लाह से करें पहले, और बाकी सब लोगों से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करें, और बाकी सारी चीजों से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करें। तो जब हम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो वी आर फोकस कम, उनके लिए हमारी मोहब्बत कम होगी, अल्लाह के लिए हमारी मोहब्बत ज्यादा होगी। तो जब हम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और अपने ही क्लोज से क्लोज रिलेटिव से हम कम मोहब्बत करते हैं, और वो भी किसके लिए करते हैं? अल्लाह की खातिर। चाहे हमारे माँ बाप हो, हमारी औलाद हो, इससे करीब का कोई रिश्ता नहीं होता, हमारे स्पाउस हो, इन सब से करीब का रिश्ता कोई और नहीं होता। तो इनसे जब हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर करते हैं, नतीजा क्या होता है? तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो जब हमारे अपने चले जाते हैं, तो हम इमीडिएटली एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि हर चीज, एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और सूरह बकरा आयत नंबर 156, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब कभी हम पर मुसीबत आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब कभी तुम पर मुसीबत आओ, तो तुम कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब कभी हमारे साथ ऐसा आता है, चाहे हमारी कोई चीज, चाहे इंसान हो या फिर कोई चीज हो, चली जाती है, तो फिर हम इमीडिएटली एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। हमारा द ग्रीफ शॉर्टन हो जाता है, हम इमीडिएटली एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं और हम ये पढ़ लेते हैं। तो जैसे ही हम ये पढ़ते हैं, हमें हमारे दिल को इत्मीनान आ जाता है। यू नो द ग्रीफ विच इज इनसाइड अस, ऑफ कोर्स वो ज्यादा अमाउंट में होगी, लेकिन स्लोली एंड स्लोली वी आर कन्वर्टिंग दैट ग्रीफ इनटू पीस। एक्सेप्टेंस, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे अंदर इत्मीनान आना शुरू हो जाता है। जैसे अभी रफत, I think I'm sorry if I am pronouncing the name wrong, रिफत, तो उन्होंने रिफत, जज़ाकल्लाह खैर, जैसे अभी इन्होंने शेयर किया था, तो एक्सेप्टेंस मोड में चले जाते हैं ना, तो हमारे अंदर इत्मीनान आ जाता है, पीस आ जाता है। वी आर सपोज टू ऑलवेज स्टे इन अ पीसफुल मोड। Allah subhanahu wa ta'ala, Islamic philosophy is that a person should always be in a peaceful mode. So a person, Quran says a successful person is the one जो इस दुनिया में और आखिरत में, a successful person is the one who has peace in their heart, कल्ब सलीम। जो जिस इंसान के अंदर कल्ब सलीम होता है, जो इंसान के अंदर इत्मीनान होता है, नफ्स से मुतमइन्ना हम जो कहते हैं, as such person will acquire नफ्स मुतमइन्ना, and this person, Allah subhanahu wa ta'ala says, this person
यही इंसान को जो नफ्स मुतमईना तक पहुंचते हैं उसको इस दुनिया में भी फलाह पा गए और आखिरत में भी फलाह पा गए। जन्नत अल फिरदौस इज फॉर सच पीपल। सो नफ्स मुतमईना पर रीच करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला प्लीज म्यूट कर दीजिए। आरफा अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से इंसान को इत्मीनान के, यानी हर बार इत्मीनान के स्टेज पे होना चाहिए। हर इंसान इत्मीनान के स्टेज पे होना चाहिए। तो जब हम इत्मीनान के स्टेज पे रहते हैं तो क्या होता है, द इमोशन, द ग्रीफ का इमोशन खत्म हो जाता है। और आप देखेंगे कि जो लोग जिनका ईमान स्ट्रांग होता है, जो अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, विल कम टू दैट, इनके अंदर इत्मीनान होता है। चाहे कितना भी लॉस हो जाए, इनके अंदर हमेशा इत्मीनान रहता है। राइट? सो पीस इज इम्पोर्टेंट। तो अब ये पीस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू ग्रीफ, हमारे अंदर ग्रीफ है। हाउ टू कन्वर्ट दैट ग्रीफ इनटू पीस, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये चीज हमें, जो हम अंदर सिंक हो गए थे एक वेल के अंदर, यही चीज हमें बाहर निकालेगी। कन्वर्टिंग द ग्रीफ इनटू पीस, दिस प्रोसेस विल ब्रिंग अस आउट ऑफ द वेल। ओके, तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट थिंग इज, पहले हम क्या कह चुके हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज लव। लव इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉस। आपका जो भी चीज गई है उसमें आप मोहब्बत ज्यादा करते हैं उसके साथ, तो फिर आपको गम भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए हमें एतदाल की मोहब्बत करनी है, ताकि वो चला जाए तो हमें गम नहीं खाना है। गम तो हम खाएंगे ही खाएंगे, स्पेशली पसंद की चीज चले गई या हमारे अपने चले गए तो गम तो होगा, लेकिन लिमिट में होगा और वो हम इजिली cover up कर देंगे। See, Allah Subhanahu wa Ta'ala says mourning period is 3 days except for a widow which is 4 months 10 days. Apart from that, हर रिश्ते के लिए mourning is for 3 days, यानी 3 दिन तक आप दिल खोल कर गम मनाएं। आप अपने दुनिया के काम रोक दें, इबादत नमाजों के अलावा आप बाकी सब चीज रोक दें, आप दिल खोल कर गम बनाएं। ये सारे गम को निकाल दे, बाहर निकाल दे। चौथे दिन you start gaining peace within you and come back to your normal life. You have to come back to your normal life. You cannot prolong that. And there is one Chinese philosopher, Confucius. He's a very famous philosopher. So he said कि parents का mourning period should be 3 years. He said, one of his students asked, 3 years तो बहुत ज़्यादा है, can't we lessen that period? So he said, if you lessen that period, it means your love for that parents is less. So he suggested mourning period for 3 years, but that's absolutely wrong. 3 years तक आप mourn करते नहीं रह सकते। हाँ, गम तो आपका वो, the longing जो है वो तो आपकी सारी जिंदगी रहेगी। It's not that कि 3 months के बाद, 3 years के बाद वो कम हो जाएगी, नहीं। आपकी जो longing है वो तो सारी जिंदगी रहेगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया भी है कि उसके साथ आपको क्या करना है। जो इंसान चला जाता है तो उसके लिए आप दुआएं करते रहें, उसके लिए आप सदका खैरात करते रहें। So he has showed us कि throughout the life how that the person who has left us, how that person is attached to you throughout the life, वो भी हमें बताए हैं। तो mourning should be there. अल्लाह सुब्हानहू तआला से 3 days के लिए आप गम खोल कर गम बनाओ। अगर आप गम को दिल में रखोगे तो that will remain within you for a very long time. So this 3 days you utilize that to remove it out from you and replace that with the peace. Right? So here I'm talking about everything in general, not just person but things. कोई भी प्रॉब्लम को आई है जिस वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा है, all of them. तो 3 दिन तक आप दिल खोल के मनाएं, उसके बाद you have to stop that your grief and you have to replace it with peace. So how can we do that? First, as I said, by Allah subhanahu wa ta'ala, अल्लाह से मोहब्बत करना और उस चीज से कम मोहब्बत करना। दूसरी चीज, हर चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देते हैं, it's a blessing. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala gives us, it is a blessing. तो blessing का हम नेमत है, जो चीज हमारे पास है वो सारी चीजें नेमत है। हमारे माँ बाप,
यानी सारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, भाई बहन, ससुराली रिश्ते, हमारी औलाद, हमारे स्पाउसेस, हर कोई हमारे लिए एक नेमत है। जी अरीबा, प्लीज म्यूट कीजिएगा। whoever has anything please raise your hands। तो ये हमारे लिए नेमत है, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए नेमत है, हमारी दौलत हमारे लिए नेमत है, हमारे हुनर, हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, जो हमारी नॉलेज, हमारे टैलेंट, हमारे स्किल्स, ये सारी हमारे लिए नेमत है। ऑल दीज आर नेमत फॉर अस। तो इसका हक हमें अदा करना है। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिया है और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से लेते हैं, तो फिर हमें इसका हक अदा करना चाहिए। हक कैसे अदा करेंगे? नेमत का हक हम कैसे अदा करेंगे? एनीबॉडी? नेमतों का हक हम कैसे अदा करेंगे? जी जुमाना। By thanking Allah. Okay, by thanking Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. And there is one more factor. Anybody else? Obeying him. Utilizing it in a right way. Right, absolutely true. Rifat ne jo kaha hai, utilizing it in the right way. Right way means according to what Allah subhanahu wa ta'ala has showed us. Okay, अब जैसे औलाद है, तो औलाद को हक हम कैसे अदा करेंगे? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करके, उसके बाद में फिर इसी अल्लाह की दी हुई नेमत को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया। तो औलाद को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? उसे नेक और साले औलाद बनाकर, उसे अल्लाह का इताअत गुजार बना के, माँ बाप के इताअत गुजार बनाकर, नेक और साले औलाद बनाकर हम उस नेमत का हक अदा करेंगे। दौलत का हक कैसे अदा करेंगे? हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में फिर हम उसको सही तरीके से हलाल तरीके से कमाएंगे और हलाल तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। हराम तरीके में हम उसको नहीं लगाएंगे और सदका और खैरात देंगे, ज़कात देंगे, सो उसका हक अदा होगा। तो जब हम नेमतों का हक अदा करते हैं, तो वो नेमत जब हमसे चली जाती है तो उतना गम नहीं होता। नेमत जब हमसे छूटती है तो हमको उतना गम नहीं होता, बिकॉज हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ हम फिर उसका हक भी अदा कर रहे हैं, हम उसका हक भी अदा कर रहे हैं, तो फिर गम हमारा कम हो जाता है, बिकॉज वी नो कि हम इस नेमत के साथ क्या करना है एंड वी आर डूइंग दैट। तो उसके साथ फिर हमारा गम जो है वो थोड़ा लाइटन हो जाता है। तो ये दोनों चीजें अगर हमारे पास ना हो, हम इससे अल्लाह से मोहब्बत ना करें और उन चीजों से ज्यादा मोहब्बत करें या उन लोगों से ज्यादा मोहब्बत करें, तो रिजल्ट विल बी डिवास्टेटेड। आप देखें कई बार ऐसा होता है, जो लोग अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते तो वो लोग डिनाइल मोड में चले जाते हैं, उनके अंदर एंगर जमा हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई सालों तक वो डिप्रेशन से वापस नहीं निकलते, कई सालों तक नहीं निकलते। लेकिन कंपेयर टू दैट, एक मोमिन जो जानता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसे पता है ये अल्लाह की चीज है, वो कभी भी ले सकता है, उसी ने दिया उसी ने लिया, दौलत उसी की चीज है, उसी ने दिया उसी ने लिया, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट के उसी की चीज है, वही देता है और वही लेता है, तो फिर ही इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो तब हमारा ग्रीफ कम हो जाता है। लेकिन अगर लोग एक्सेप्ट ना करें ना, एक्सेप्ट के मोड में नहीं आए, तो दे विल फॉल अपार्ट। जो मैं बात कर रही थी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये उन्हीं लोगों को होता है जो एक्सेप्टेंट मोड्स में आते ही नहीं है, एक्सेप्टेंट मोड्स में आते नहीं है, अगर आ भी जाए तो रिलक्टेंट है, रिलक्टेंटली दे हैव एक्सेप्टेड द लॉस। लेकिन जब आप दिल से एक्सेप्ट कर ले, you will not enter into post-traumatic stress, right? So as we said, ये दो important है कि अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत करें और blessings का हक अदा करें। थर्ड चीज और सबसे ज्यादा important, ये ग्रीफ हमसे होता क्यों है? हम यानी ये ग्रीफ बेसिक चीज is that अल्लाह पे तवक्कल नहीं हो। जब अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर हमारा तवक्कल कम हो, ट्रस्ट कम हो, then the grief will increase. But if we have a complete tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala, our grief will come down.
And the next factor is the belief in the qadr. Belief in qadr is one of the 6 pillars of iman. The 6 pillars of iman are believe in Allah subhanahu wa ta'ala, believe in Rasul, all his messengers, believe in all his books, believe in his angels, believe in qadr, our destiny, and believe in the day of judgment. So all these are the 6 pillars. These are the 6 pillars of Islam, and among them one pillar is belief in qadr. So अगर हमारा ईमान qadr पे मुकम्मल रहा, complete faith रहा, we have complete faith on destiny. Of course, our destiny is made by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ने हमारी destiny लिख दी. And let me remind you, Allah subhanahu wa ta'ala ने दुनिया कायम होने से 50,000 साल पहले हर इंसान की डेस्टिनी लिखी है. 50,000 साल पहले हमारी डेस्टिनी लिखी है. आप और हम मिलकर आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. It was already written there 50,000 years before the formation of the world. तो फिर हमारी एज वर्ल्ड फॉर्मेशन होने के बाद हम कितने साल बाद आए हैं, अल्लाहु आलम. सो इमेजिन दैट आप और हम मिलके बैठने वाले हैं. इट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड देयर. सो जितना हम अपने ईमान के ऊपर ज्यादा फेथ रखें, स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखें हम अपने ईमान हमारे अपने कदर पर, जितना ज्यादा हम कदर पे ईमान रखें उतना ज्यादा हमारी मदद होगी ग्रीफ को छोड़ने में, ग्रीफ से बाहर निकलने में. Alright, so these are the factors which will help us to come out of the grief and convert grief into peace. तो जैसे मैंने कहा था earlier कि जब grief आता है तो a person falls down the pit and then he has to come up. तो वो जब बाहर निकलेगा, either somebody has to support him. तो जैसे फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी के लिए जाते हैं, CBT, कॉग्निजेंट बिहेवियर थेरेपी के लिए लोग जाते हैं ताकि कोई उनको पकड़ कर लेके आए, या फिर आप अपने अंदर से ये फोर्स पैदा करें कि हम बाहर निकल के आए. और ये फोर्स हमारे अंदर कैसे आएगा? अल्लाह पर तवक्कल रखने के लिए. अल्लाह पर तवक्कल रखें, बिलीव इन कद्र और मोहब्बत. जैसे मैंने बताया कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत हो और ब्लेसिंग्स का हक अदा करते रहें. So these are the additional factors. Allah से मोहब्बत करना, loving others, loving everything else for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala और नेमतों का हक अदा करना. These are the additional factors. The main factors here are trust in Allah subhanahu wa ta'ala and believe in qadr. So the main factors responsible behind grief is to trust in Allah subhanahu wa ta'ala, believe in qadr. तो ये दो चीजें हमारे अंदर हो. These are the enhancing factors जो हमें पिट में से या वेल में से बाहर निकालें, ग्रीफ में से हमें बाहर निकालें. These are the two major factors. यही आपकी मदद करेंगे आपको गम से बाहर निकालने के लिए. राइट, ये दो आपकी मदद करेंगे आपको गम से बाहर निकालने के लिए. ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जितना आपका अल्लाह पर ट्रस्ट बना रहे. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब कभी मुसीबत आओ तो कह दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. तो आपकी मुसीबतों का यानी जो भी चीज अल्लाह की थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे वापस ले गए. तो ट्रस्ट होनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, मुकम्मल ट्रस्ट होनी चाहिए. व्हाटएवर ही डज इज बेस्ट फॉर अस. इसीलिए हम सूरह काफ पढ़ते हैं. क्यों मतलब अपने आवाज नहीं जाती है, आती है. माइक ऑफ यास्मीन काजी. तो सूरह काफ में हम पढ़ते हैं मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर अलैहिस्सलाम के बीच की कहानी कि कैसे उस एक नेक इंसान की औलाद को खिदर अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया था. और मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों कत्ल किया, ये तो बच्चा था. तो आपने कहा कि ये बड़ा होकर ये अपने माँ बाप को गम पहुंचाता था, तो अल्लाह का हुक्म था कि इसको अभी ही कत्ल कर दिया जाए. तो वहां पर एक हिकमत है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहते थे कि वो बच्चा बड़ा होकर ये नेक माँ बाप गुमराही के रास्ते पे चला जाए. वो बच्चा बड़ा होकर ये माँ बाप को गुमराही के रास्ते पे ले जाने वाला था. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको प्रोटेक्ट कर दिया, उस बच्चे को ले लिया और दूसरे बच्चे को फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अता किया. सो
दैट इज ऑब्वियसली उनका चहीता बच्चा था वो, तो तब तो उनको गम हुआ ही होगा, लेकिन वो गम के पीछे उनके लिए भलाई थी। इसीलिए हम सूरह काफ पढ़ते हैं एवरी फ्राइडे। बहुत सारे लेसन्स आते हैं सूरह काफ में, ताकि हम वो लेसन्स बार बार दोहराते जाएं, ताकि हमारे साथ जो भी नुकसानात हो, आए दिन कोई ना कोई हमारे साथ नुकसान होगा, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहे, हमारे अंदर ताकत रहे कि हम गम को फौरी तौर पर निकाल सकें। एक मोमिन के अंदर खौफ और गम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब ये दो चीजें निकल जाती हैं, then we are strong. Inshallah, this factor I will do tomorrow. तो यहाँ पर गम जितना जल्दी हो सके हमें गम निकालना है, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक मोमिन के अंदर गम नहीं होना चाहिए, डर और गम नहीं होना चाहिए। तो जब गम आया है तो इसको हम जल्द से जल्द कोशिश कर कर इसको निकालना चाहिए। तो निकालने के लिए what is required, as I said, trust in Allah subhanahu wa ta'ala, believe in the qadr, loving love should be for Allah subhanahu wa ta'ala, and blessing का हक अदा करना। तो जब हम ये सारे काम करें तो हम बाहर निकाल सकते हैं। नाजिमा प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा, नाजिमा माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज, जज़ाकल्लाह खैर। तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ऑलराइट, तो कमिंग बैक टू द रॉस मॉडल, जैसे हमने कहा था कि इसके स्टेजेस कम हो जाएंगे तो फिर हमारा ग्रीफ का पीरियड भी कम हो जाएगा। जैसे ही हम एक्सेप्टेंस के मोड में चले जाएंगे, वी विल हैव पीस विद इन अस, वी विल स्टार्ट गेटिंग पीस विद इन अस। तो जब वो पीस हमारे अंदर डेवलप होता जाएगा तो ग्रीफ हमारे अंदर छूटता जाएगा, गम हमारे अंदर निकलता जाएगा। Whatever is lost, उसकी लॉन्गिंग तो हमारे पास सारी जिंदगी रहेगी, चाहे वो चीज हो या चाहे वो इंसान हो, उसकी लॉन्गिंग तो हमारे पास सारी जिंदगी रहेगी, लेकिन गम हमसे छूट जाएगा। डिफिकल्ट सिचुएशन में, फाइनेंशियल क्राइसिस में हम हैं, गम हमारे से छूट जाएगा। वी विल बी फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस इन अ पीसफुल मोड। और जब इंसान पीस में होता है तो उसका जहन भी सही तरीके से चलता है। सही तरीके से जहन चलने से हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला wants us to keep moving, हम आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन अगर इंसान फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाए और वो डिप्रेशन मोड में चले जाए तो उसका जहन नहीं काम करेगा। उसका जहन नहीं काम करेगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो रिट्रीट होता जाएगा। एज इट इज वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, और अगर वो इससे बाहर निकलने की कोशिश ना करे तो वो और ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में बढ़ता जाएगा, उसके फाइनेंशियल लॉस और बढ़ते जाएंगे। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर आपसे कोई चीज ले ली है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम वहां पर बैठ जाएं, स्टैंड स्टिल हो जाए। नो, इस्लामिक फिलॉसफी इज यू हैव टू मूव। गिर के उठना चाहिए, जब गिर जाए तो उठना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे कुछ ले चुके हैं, हम बैठ गए हैं, तो यहाँ से हमें उठना चाहिए। और उठने के लिए जो आपको फोर्स चाहिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या फोर्स चाहिए। वो फोर्स सारी हमें हेल्प करेगी। सो अगर इंसान, नॉर्मल इंसान जो दीन से कनेक्टेड ना हो, तो फिर वो शौक के बाद डिनायल मोड में जाएगा। डिनायल में उठ के वक्त गुजारेगा, फिर एंगर में जाएगा, एंगर से मोड में वहां वक्त गुजरेगा, फिर बार्गेनिंग। इट विल टेक हिम टाइम, इट विल टेक a long time. It depends upon the person कि वो each mode में कहाँ तक रहता है। Whereas a moment shock से direct acceptance में चला जाएगा, so the intensity will come down. Now coming to another view, एक दूसरा टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पर, सब टॉपिक you can say इसी उसमें। हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना जब एक मोमिन का खुला दुश्मन शैतान होता है, एक मोमिन का खुला दुश्मन शैतान, अल्लाह सुब्हाना ताला मेंशन इन द कुरान नंबर ऑफ टाइम्स कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। सो नाउ व्हाट इज एंगर? जब एंगर के मोड में जाते हैं, व्हाट इज एंगर? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज एंगर? Anybody? एंगर के ऊपर हदीस आती है, तो what is anger associated with? We are talking about Islamic perspective.
what is anger associated with? With shaitan? Yes, of course. Anger is associated with shaitan. आप लोगों को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए. Anger is always associated with shaitan. जब कभी आपको गुस्सा आ जाए तो जान ले शैतान आपके ऊपर हावी हो गया. Shaitan has overtaken you. Anger synonymous with shaitan. होते हैं ना words, synonymous words. तो for us Muslims, anger is synonymous with shaitan. जैसे ही आपको anger आ जाए, you know, light, a red bulb should fluctuate in you. Okay, this is anger. जैसे ही आ जाए, immediately, not red, green bulb should fluctuate rather. कि आपको immediately remind आ जाए कि it is the shaitan. तो यहाँ पर भी जब हम denial mode में जाते हैं, we refuse to accept, तब हमें गुस्सा आता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है. And now you have opened the door for the shaitan. जैसे ही आप anger mode में जाते हैं, you have opened the door for the shaitan. अब शैतान आपके अंदर वसवसे डालना शुरू करता है. You know the whisperings of the shaitan, वसवसे. तो वो it starts whispering in you. The shaitan will start whispering in you. आपको फिर गुमराही के रास्ते पे ले जाएगा. You know, he will start saying, yes, it shouldn't have happened to you. Look at other people. इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ. Why you? Why you? इसीलिए हम उसकी बात सुनकर अब दोहराते हैं. Why me? Why me? Otherwise ये why me का सवाल ना हमारे अंदर नहीं आता. लेकिन जब शैतान वसवसे डालता है ना कि तुम ही क्यों, तो तब हम मुंह से बोलते हैं why me बोलकर. तो पहले ख्यालात हमारे अंदर आते हैं, उसके बाद हम मुंह से बोलते हैं. तो ये ख्यालात आते कहाँ से हैं? ये ख्यालात शैतान के तरफ से आते हैं. Understand? We all know कि there are only two sources. एक अल्लाह की तरफ से सोर्स है और एक शैतान के तरफ से सोर्स है. शैतान ने, इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था कि उसको मोहल्लत दे, उसको टाइम दे, और ताकि वो मोमिनों को मिसगाइड कर सके. So Allah subhanahu wa ta'ala gave him the freedom to misguide the people. तो what Iblis did, हर एक इंसान के साथ करीन होता है. शैतान करीन, जिन करीन होता है जो हमें मिसगाइड करता रहता है. और एक अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए एक एंजल करीन भी रखते हैं जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते जाते हैं. That is how we always struggle. हमारे अंदर एक किस्म की वॉर चलते रहती है between good and bad every time we go through that phase. तो अब यहाँ पर भी जब इंसान को गुस्सा चढ़ता है तो we have opened the door for the shaitan and he will start all his connotations. वो अपने कहानियां बनाते जाएगा, वो आपके जहन में डालता जाएगा, थॉट्स डालता जाएगा, all negative thoughts डालता जाएगा. And अगर आप उसको वहीं पर बंद ना कर दो तो फिर you will fall prey to that. You will fall prey to that शैतान, उस शैतान के लिए. तो आप फिर उसकी बात सुनने लगोगे. And फिर वो दरवाजा खुल, you know, you go in that direction. आप फिर सिरातुल मुस्तकीम को छोड़कर you will be following the direction of शैतान. और जितना दूर आप चले जाओगे उतनी दूर आपके लिए मुश्किल होगी वापस सिरातुल मुस्तकीम पे आने के लिए. तो यहाँ पर सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक सिरातुल मुस्तकीम और एक शैतान के. दो ही रास्ते हैं. We assume कि ये हमारे थॉट्स है और ये हमारी डिजायर्स है, ये हमारी थिंकिंग है, बट नहीं, ये हमारी नहीं होती. ये शैतान हमारे अंदर वसवसे कहाँ से आता है? Did you ever think कि हमारे अंदर थॉट्स कहाँ से आते हैं? Who puts those thoughts inside you? There has to be a source. Thoughts आने के लिए there has to be a source. So those sources are, that source is from the shaitan. Of course वो सारी चीजें हम सीखते हैं, किताबों से लेते हैं, but उस टाइम पर, during that particular moment, the thought coming into your mind is from whom? From the shaitan. जब हम कहते हैं ना कि अच्छे thoughts are from Allah subhanahu wa ta'ala, जब हम immediately we are in a problem and we want a solution and suddenly a thought comes in our mind, और जब वो अच्छा है we say it is from Allah subhanahu wa ta'ala.
तो जब ये थॉट हम कहते हैं अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से है, तो फिर ये थॉट कहाँ से आया? ये थॉट फिर हमारे पास शैतान के पास से आता है। तो जो थॉट्स हमारे पास लगातार आते रहते हैं, इधर इट इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हान ताला और इट इज फ्रॉम द शयातीन। तो यहाँ पे यही एंगर मोड में जब हम जाते हैं और हमारा ईमान अगर कम हो, अल्लाह पर तवक्कुल कम हो और हम कदर को नहीं मानते, तब तो फिर हम आगे ही बढ़ते जाते हैं, शैतान के रास्ते पर आगे ही बढ़ते जाते हैं। ये अनगिनत वसवसे डालते जाता है हमारे अंदर, थॉट्स डालते जाता है, एंड देन वी गो इन दैट पाथ। तो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द शायातीन, हमारा ग्रीफ, हमारा गम प्रोलॉन्ग हो सकता है। So that you have to remember. As we said here, one of the mode is anger, and anger is synonymous with shayateen. So what we need to do is close that door. उसको बंद कर दें ताकि हमारा ये जो फेज है ग्रीफ का वो शॉर्ट हो जाए। Otherwise, the shayateen will increase that phase. शैतान आ जाए तो वो फेज फिर हमारा बढ़ जाएगा। It will be longer. Okay, now we have studied कि हम ग्रीफ से कैसे बाहर निकालें। Okay, how to come out of it, how to completely remove the grief. ये तो हमारा था कि हम इससे कैसे बाहर निकले या at least identify grief करें। So you can say ये सारे factors will help us to identify कि हम ग्रीफ में हैं और एक स्ट्रेंथ हमारे अंदर देते हैं। लेकिन now it is the time to remove the grief completely. So what does the Quran prescribe? कुरान का प्रिस्क्रिप्शन क्या है ग्रीफ को निकालने के लिए? So what is the worldly prescription? As I said, worldly prescription, आप ग्रीफ के अंदर है, आपको निकालने के लिए either you need somebody's support, either your own relatives जो आपको you know बातचीत कर थेरेपी देकर आपको निकाले, या फिर CBT you will use through a psychologist, वो आपको हेल्प करें बाहर निकालने के लिए। या फिर अगर डिप्रेशन में चले जाए तो फिर you will have to use the drugs, antidepressive drugs में आ जाएंगे। But there is a simple solution given in the Quran, and you all know कि दुनिया में जब हम जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो how much it costs us? They take a huge amount, बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है उसकी। और साथ ही साथ अगर हम डिप्रेसिव ड्रग्स, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स चले जाएं तो उसके साइड इफेक्ट्स कितने आते हैं, वी ऑल नो दैट। I'm not going into detail because वक्त खत्म हो रहा है। So let me come back to the Islamic perspective कि अल्लाह ने इसका ट्रीटमेंट क्या रखा है। आयत नंबर 153 in Surah Baqarah ayat 153, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as sabirin. That's it. This is your remedy, this is your cure. जो आप इतने सारे पैसे वहां पर लगाते हैं साइकोथेरेपी के लिए, free of cost, Allah subhanahu wa ta'ala has given it to you. So what this ayah means, that is very important, we need to understand. Ya ayyuhallazina amanu, it is referring to believers. Ya ayyuhallazina amanu, those who have belief. So ye nuksa, this cure, this remedy is useful, beneficial only for a person who has iman, a person with iman. That is why we said trust in Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkal to in Allah subhanahu wa ta'ala, the love for Allah subhanahu wa ta'ala. जब इंसान के दिल में मोहब्बत होती है अल्लाह के लिए, तब ईमान पैदा होता है। तो हमारे दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है, हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग है, तो ये आयत फिर हमारे काम की है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो जो ईमान लाए, इस्ताइनु बिस्सब्र, तो वो फिर इस्ताइनु टेक हेल्प, सीक हेल्प विद सब्र, सब्र के साथ सब्र की हेल्प लो, वस्सलाते, और सलाह की हेल्प लो, इन दोनों चीजों की हेल्प लो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मा साबिरीन, is with the person who जो सब्र करता है, a person who has sabr. So here, what is sabr?
this is very important. We have to understand what is sabr, because this is the remedy. Sabr and salah, this will remove your grief. So what is sabr? First, what is sabr? Salah we know, that is namaz, we all know. But do we know sabr? That is most important. तो पहले सबर को समझेंगे, उसके बाद में फिर ये ग्रीफ को कैसे हटाएगा वो समझेंगे. Can somebody tell me what is sabr? Yes. According to your whatever you understand, layman knowledge ही सही, आप बताइए कि हमारी डेली लाइफ में जब हम यूज करते हैं सबर. यस परवीन, व्हाट इज सबर? मनफी रवैये से अपने आप को रोकना, यानी नेगेटिव जो अपनी हालात रहते हैं उसको अपने आप उस पर सबर करना, यानी रोके रखना अपने आप को. ओके, जज़ाकल्लाह खैर. यस, others. सितारा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ओके, एनीबॉडी एल्स? अरीबा. अपनी नफ्स को कंट्रोल करना, अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करना, सबर. राइट, अपने नफ्सों को कंट्रोल करना, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना. आई गेस आप लोग सब दीन से जुड़े हुए हैं, so that is the correct answer coming out. I want person who is not connected with the deen, what they consider what is sabr. Self control. Ariba says self control. Okay, anybody else? Sabr karo. Control our emotion. Control our emotion. Right. Anybody else? अल्लाह के दिए पे राजी होना. अल्लाह के किए पे राजी नहीं. Okay, जज़ाकल्लाह खैर. So this is what the sabr, the concept of sabr is. हम जब भी आम तौर पे जो लोग दीन से जुड़े नहीं, जिसका ईमान कम होता है, तो what we say सबर करो. सबर करो is it means bear it, just bear it. Whatever, what condition you are, just bear it. That is what we have in our mind. A layman, as I said, first हम without ईमान की बात करेंगे, then coming to ईमान. तो जिस इंसान के अंदर ईमान कम है या ईमान ना हो, तो उसके लिए सबर is what bear करो. You know, bear करो. सबर का ट्रांसलेशन भी वही होता, perseverance, bear it. But it is not bear it. Bear करना है of course, लेकिन कैसे bear करेंगे आप? There's a difference between bearing it and removing it from the roots. उसको पूरा निकाल देना. सबर इस जैसे गम होता है, तुम सबर कर लो, यानी बेर कर लो उसको. No, don't bear it. Remove it. सबर is not bearing it. सबर is removing it. जो आपकी तकलीफ है उसको निकालो. That is सबर. लेकिन हम उसको बोलते हैं उसको बेर कर लो. बेर कर लो उसको बेर कर लो. लेकिन उसको बेर नहीं करना है, उसको निकालना है. So understand सबर clearly. सबर means to to remove, to control or remove the ongoing emotion. आपके अंदर जो भी emotion है, whatever emotion you are facing, to stop or prevent the ongoing emotions. Whatever emotions you are going through, either you have to stop that, and you have to prevent from it coming back to you. Grief है तो उसको आप prevent करें कि अब और grief नहीं आना चाहिए, अब मेरे अंदर और grief नहीं आएगा. It's not just bear कर लेना, यानी bear कर लेने का मतलब होता है उसको pent up करके रखना है आपके अंदर वो emotion को pent up, उसको store करके रखना है. That is bearing. No, bearing is not the word. आप bear करते जाओगे, आप उसको store करते जाओगे, तो फिर one time it will explode. It will explode like how a volcano explodes. तो जितना ज्यादा quantity में है उतना ज्यादा explosion होगा. So don't bear that. You have to eliminate it. उसको अंदर से निकालना है, eliminate करना है. So sabr is to stop and prevent or eliminate the ongoing emotions. कोई भी emotions हो, joy emotion हो या sadness emotion हो या फिर fear हो, any type of emotion, you have to eliminate it from inside. आपके अंदर से उसको eliminate करना है. So you have to
prevent that. And how you are going to prevent that, how you will remove that? Second is the salah, with the help of the salah. So Allah subhanahu wa ta'ala says, take the help of sabr, that is eliminated. Through sabr you eliminate the grief. Okay, मैं तैयार हूँ अपने grief को eliminate करने के लिए, लेकिन कैसे करूँगी? How do I do that? I don't know how to do it. Allah subhanahu wa ta'ala says, was-salat, नमाज से, नमाज के थ्रू. नमाज में क्या होता है? जब हम सलाह पढ़ते हैं तो what a salah, खुशू के साथ पढ़नी चाहिए. A salah with a khushu will help you to eliminate your grief. But a salah without a khushu will not help you in eliminating a grief. That is why, coming back to the word, allazina amanu. So those who believe, जिनके ईमान strong होते हैं, whoever have a strong ईमान, उसी की नमाज खुशू के साथ होगी. तो जब आपकी नमाज खुशू के साथ होगी तो तब आप ये गम को निकाल पाएंगे. खुशू में जब नमाज खुशू होती है, what is खुशू? कि we are praying a salah, we are establishing, it is not praying, it is establishing, we are establishing a state. नमाज के दौरान, सलाह के दौरान हम एक ऐसे state formulate कर रहे हैं, establish कर रहे हैं, जहां पर I forget, तकबीर तहरीमा कहते ही I forget the world, I am in presence of Allah subhanahu wa ta'ala, I imagine myself to be in presence of Allah subhanahu wa ta'ala, I imagine myself seeing Allah subhanahu wa ta'ala, although I don't see him, but I imagine seeing him. तो जैसे ही मैं ये state में पहुंचूं, that is khushu. So everything, the whole world is left behind. I am in direct contact with Allah subhanahu wa ta'ala. तो जब हम ये state में पहुंचते हैं, इस state में हम नमाज पढ़ते हैं, सलाह establish करते हैं, ये stage हम establish करते हैं, और जब हम सजदे में जाते हैं, सजदे में आपकी दुआओं की कबूल होती है. तो जब आप सजदे में जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला से रोक कर अपने इमोशन सारे बाहर निकाल देते हैं. ये सारे जो grief है, you take it out. You take it out through your salah. It is eliminated. It goes on being eliminated. ये eliminate होते जाता है. It goes on eliminating. जैसे जैसे आपका state of खुशू बढ़ता है, ये process of elimination बढ़ता जाता है. So you find a source to remove it without any drug, without any therapy, without anything. Allah subhanahu wa ta'ala is lending you his hand. Allah subhanahu wa ta'ala is taking you out of that pit, out of that well. He is helping you. He is your savior. Do you get this? So sabr is what? To eliminate your grief. It is not to bear, but it is to eliminate your grief. आप उस grief को निकालें. और कहाँ से कैसे निकालें? कौन उसको हेल्प करेगा निकालने के लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इसके लिए नमाज में खुशू चाहिए. नमाज में खुशू के लिए आपका ईमान स्ट्रांग होना चाहिए. ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए. सबसे बढ़ के अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए. जितनी ज्यादा आपकी अल्लाह से मोहब्बत होगी, उतनी ज्यादा फिर आप खुशू पाएंगे और आप इस गम को निकाल देंगे. And when this is out, when this leaves you, it is replaced by peace. Allah subhanahu wa ta'ala will replace it with peace. He will replace it with peace. So that is replaced by peace, and you come back to yourself, to your normal life, and you have enough strength within you to move on with your life. Grief के बाद next stage क्या है? To move on. एक बार आपका लॉस हो गया, कुछ देर के लिए आप रुक गए, but आप सारी जिंदगी नहीं रुक सकते. You have to move on, and Allah subhanahu wa ta'ala will help you to move on. Right? So ayat number 153 of Surah Baqarah, that is our remedy. Eliminate your grief and move on with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. So you have everything with us. हमारी Islamic हमारे कुरान में everything is there. It identifies the reason कि किस वजह से आपके अंदर ये चीज पैदा हो रही है. It identifies the source.
and then it helps you to cure. It gives a remedy. It helps us, it tells us कि cure कैसा होना चाहिए, and then it provides a remedy. Now एक चीज और आती है इसमें कि जब हमारे साथ ट्रायल आ जाए तो how do we know कि it is a punishment for us or it is a trial for us? There is a difference between a punishment and trial. So within 5 minutes I will finish off with that कि how to differentiate between this. अब जब कोई भी लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, जॉब चले जाए तो, या फिर कोई आपकी पसंद की चीज चली जाए, कोई बड़ी चीज चली जाए, तो फिर आपको क्या लगता है, क्या आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके साथ आजमाइश है, आपकी आजमाइश trial है, or it is your punishment. It is a punishment from Allah Subhanahu wa Ta'ala. We need to judge ourselves. Is it a low state of iman or there is no डॉक्टर सफीना, साउंड बिल्कुल ब्रेक हो रही है, अभी बंद हो गई बिल्कुल. हेलो. हो सकता है, वो चीज हमारे लिए पनिशमेंट हो सकती है. So first we need to identify कि who we are. Either I'm a believer or a non-believer. So if I consider myself as a believer, it will be a trial for me. But if I consider myself as a non-believer, it is my punishment. Next चीज हमें ये देखना है कि हमारे अंदर हमारी रूह के अंदर क्या है. रूह के अंदर डर, खौफ है या फिर सुकून, इत्मीनान है. What our soul is facing. Is it facing fear, the emotion? Is it fear or is it the peace? तो एक punishment, जिसको punishment मिलेगा, उसके लिए वो fearful होगा. The loss will be a fear factor. It will be fearful for them. But a loss will be a peaceful factor for a moment. Third, आपके अंदर अल्लाह के लिए ट्रस्ट है, तवक्कुल है कि नहीं है. पनिशमेंट, जिनके ऊपर भी पनिशमेंट आता है तो उनके अंदर अल्लाह के लिए तवक्कुल नहीं होता, डेस्टिनी, बिलीव इन डेस्टिनी नहीं होती. whereas अगर इस इंसान के अंदर ट्रस्ट है, बिलीव इन डेस्टिनी है, then it is considered that as a trial. Next factor, जब आपको लॉस होता है तो आप अल्लाह से दूर जाते हैं. शैतान वसवसे डालता है तो you thread that path. You thread the path of a शैतान. तो आप शैतान के रास्ते चल देते हैं. You are going far away from Allah Subhanahu wa Ta'ala. But if with that loss, you are still attached to Allah Subhanahu wa Ta'ala, or you come more close to Allah Subhanahu wa Ta'ala, you say कि या अल्लाह ये चीज आप ही की थी, आपने दी, आपने ले लिया. It's okay. I'm fine with that. It's okay. So फिर you are more close to Allah Subhanahu wa Ta'ala. And the last thing, कि the loss is harmful if it is a punishment, whereas loss is a fruitful if it is a trial. तो loss fruitful कैसे होगा? Your sins will be forgiven. हम जानते हैं ना हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर एक कांटा भी चुभे तो आपके गुनाह माफ होते हैं. Even if a needle pricks you, your sins will be forgiven. तो यहाँ पर तो इतना बड़ा लॉस की बात हो रही है. So our sins will be forgiven. We will come close to Allah Subhanahu wa Ta'ala. जो हमारी फेवरेट चीज थी अल्लाह ने ले ली. We say okay, it's okay with us. आपने दिया, आपने लिया. It's okay with us. Sanover, please mute. Mic mute कीजिए please. Jazakallah khair. So you come close to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Third thing for fruitfulness, ये जो लॉस हमारा है वो हमारे लिए फायदेमंद कैसा है.
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बेहतर चीज देगा। जो भी चीज हमसे चली गई है, बिलीव दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए बेटर रिप्लेसमेंट देगा। डू रिमेम्बर अबाउट उम्मे सलमा, मदर ऑफ द बिलीवर्स रदी अल्लाह अन्हु। तो आपके साथ क्या हुआ था? आपके जब शौहर शहीद हो गए थे, आप अपने शौहर से बहुत चाहती थी, आपके शौहर शहीद हो गए थे, सो शी वाज इन अ ग्रीफ, बहुत ज्यादा दुख था, आपको बहुत ज्यादा गम था, एंड शी वाज वंडरिंग कि अब कौन मिलेगा। आपके शौहर शुहदा थे, जंग में शहीद हो गए थे, आई थिंक जंग बदर नहीं, ओहद के जंग में शहीद हो गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज। तो आप शहीद हो गए थे, आपके शौहर शहीद हो गए थे, तो एंड ही वाज वन ऑफ अ वेरी पायस पर्सन। तो आप ये सोचती थी कि अब इससे अच्छा शौहर कहाँ मिलेगा, ये तो बहुत ज्यादा पायस थे, बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, बहुत ज्यादा नेक थे, इनसे अच्छा शौहर कहाँ मिलेगा। तो फिर आपको किसका पैगाम आया, किसका प्रपोजल आया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे और कोई बेहतर इंसान नहीं हो सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलायंस आया। तो इसी से वी अंडरस्टैंड के हमें और बेटर चीज मिलती है। तो जो भी चीज जाती है उससे बेहतर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देते हैं। और चौथी चीज, हम एक मोमिन को सदा का यही डर होता है, शायद ये जो चीज गई है अल्लाह सुब्हानहू तआला शायद मेरे ये पनिशमेंट था मेरे लिए। तो हम बार बार दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह अगर ये पनिशमेंट था तो मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तो फिर आपके गुनाह और फर्दर माफ हो रहे हैं। सो दिस इज अ फ्रूटफुल, अ लॉस इज अ फ्रूटफुल फॉर अ मोमिन, एंड इट इज सेड कि एक मोमिन हमेशा विन विन पोजीशन पे होता है, चाहे उसको अपनी चाहिए, उसको व्हाटएवर अ पर्सन विशेस उसको मिल जाए या उससे छूट जाए, वो फिर भी जीतता है। दिस इज हाउ फ्रूटफुल होता है वो, जो चीज उससे छूट जाए उसके बावजूद भी वो मुतमईन रहता है, वो यानी वो फ्रूटफुल होता है। सो हमारे साथ अगर लॉस हो जाए, वी शुड एनालाइज हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, हमारे अंदर इत्मीनान है कि नहीं है, वी ट्रस्ट इन अल्लाह और नॉट, have we come close to Allah more with this loss or not। अगर ये सब चीजें हैं तो this is a trial for us, this is not a punishment but a trial for us। तो एक चीज, एक ही लॉस, वो किसी के लिए ट्रायल होगा तो किसी के लिए वो पनिशमेंट होगा। इट कुड बी anything depending upon who you are, so you have to identify yourself ke who you are। So depending upon your iman, it could be a trial and it could be a punishment। So with that I conclude my discussion on grief। inshallah tomorrow I will continue with fear, and uske baad mein fir hum देखेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट fear और grief, how they are related with the other qualities which Allah Subhanahu wa Ta'ala has mentioned, कि इन दोनों चीजों को कैसे हम निकालना चाहिए। Okay, we'll do that tomorrow inshallah। Any question now on this? So I hope this is clear, the whole concept of grief is clear, and I hope you understood how to overcome the grief as soon as possible and how to replace the grief with the peace। जो चीज हमसे छूट गई है, अगेन आई से, वो इररिप्लेसेबल है, वो तो कभी वापस नहीं आएगी, ना ही वो रिप्लेस हो सकती है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना है, उसकी वजह से हम नहीं रुक सकते। We have to move on, other people depend upon us, we have lots of work to do। अल्लाह के तरफ जो हमारे हुकूक है वो अदा करने हैं, अल्लाह के बंदों के तरफ जो हुकूक है वो अदा करने हैं। We have to get up and we have to move on। One loss cannot stop us, cannot prevent us, we have to go on, right? Any questions?